हूँ शरद दुबे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से जो है जुड़ रहे अभिषेक सत्यव्रतम। और अभी जो है ऑफ कोर्स रिलायंस की बहुत अहम एजीएम स्टार्ट हो गई है, उस पर अभी अब नज़र डालते हैं। अभी चलते हैं डायरेक्टली रिलायंस एजीएम की तरफ। बहुत एक्सपेक्टेशंस है जी और उस पर जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। और देखा जाए तो मुकेश अंबानी जो प्रमोटर हैं, सीईओ हैं, वो अब जो है बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। चलिए वहाँ जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर में जो है अनाउंसमेंट्स भी आने लगेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन याद रखिए बाज़ार में जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरह वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलती है। एक है जियो, एक है उनके कंजम्पशन के रिटेल स्पेस पे कहीं पे कोई वैल्यू अनलॉकिंग है, या कोई न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके आगे जाते हुए क्या ग्रोथ रहने वाली है। ऑफकोर्स स्टॉक फ्लैट था एजीएम के पहले खुलने पे और वही 1380 टू 1400 लेवल्स पे जो है हमें दिख रही थी। और उसके अलावा जो है जो बिल्डअप था, वॉलेटिलिटी जो है दिखने मिल रही थी। और देखा जाए तो धीरे धीरे करके उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ये 48th एजीएम होने वाली है और अब देखें, अभी शुरुआत होने वाला है। और अब चलते हैं आप रिलायंस एजीएम की तरफ। Al Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Dinesh Kanabar, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad, Shri Anant Ambani, Mrs. Isha Ambani Piramal, Shri Akash Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, our Company Secretary, Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and the secretarial auditors of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 6, 2025, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2025, have already been circulated electronically to the members of the company. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2025 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste and a very warm welcome to the 48th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. We meet today on the most auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Lord Ganesh has arrived in our homes and in pandals on our streets. Let us begin this meeting by seeking the blessings of Bhagwan Ganesh for you, your families, the entire Reliance Parivar, and for all the people of India and the world. Friends, the global economy today is navigating through an era of great uncertainty. Geopolitical tensions are rising, volatility is persistent, and predictability is scarce. The world is realizing that conflict produces no winners, whereas cooperation ensures shared prosperity. When nations cooperate, trade flows freely, investments flourish, and everyone wins. In today's interdependent world, the prosperity of each country is inseparably linked to the prosperity of all. Paradoxically, while uncertainty surrounds us, humanity also stands at the threshold of a golden age in the 21st century. An age defined no longer by scarcity,
but by superabundance and super affordability for all the 8 billion people on this planet. This has become possible because of the convergence of three powerful technological transformations. Breakthroughs in clean energy are unlocking a future of abundance, sustainability, and security, raising hopes for overcoming the climate crisis. Breakthroughs in genomics promise dramatic improvements in cure of diseases, longevity, and overall health. Breakthroughs in artificial intelligence and allied deep technologies have already begun to boost productivity, efficiency, and human potential to unimaginable levels. Because of the miraculous power, AI can now be called the new Kamdhenu, the divine wish-fulfilling cow of our age. At Reliance, we see these three convergent transformations not as distant possibilities, but as immediate opportunities for India. Therefore, we are building the world's most advanced clean energy ecosystems. We are expanding into the frontiers of digital health, life sciences, and genomics. And we are developing AI as a new growth engine besides embedding AI across all our businesses from retail to telecom, from energy to entertainment. India, with its scale, talent, and entrepreneurial spirit, is uniquely positioned to lead in this new era of AI, clean energy, and genomics. And Reliance has positioned itself confidently to lead our nation's mission to ensure that जी बिल्कुल, रिलायंस एजीएम शुरू हो गया है और मुकेश अंबानी बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी थोड़ी अनसर्टिनिटी बनी है, स्टॉक फ्लैट है और आगे जाते हुए क्लीन एनर्जी और एआई को लेके जो है कमेंट्री आ रही है। धीरे धीरे करके हम आपको और भी बता देंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स रिलायंस की तरफ से आ रहे हैं। अभिषेक, किस तरह जो है अभी जो है शुरुआत करते हैं बाजार की भी सेटअप को लेके, बहुत सारे इवेंट्स भी 3-4 दिन में लाइंड अप है, तो उस पर भी हमारी एक बार नज़र रहेगी। लेकिन शो का फ्लो जो है उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं कि आज हमारे शो में क्या रहेगा। अच्छा ठीक है अभिषेक, ज़रा बताएं, पहले रिलायंस पे आपकी थोड़ी व्यू ले लेते, फिर एक बार बाजार की क्या सेटअप है उस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। शरद, रिलायंस तो अब मुकेश अंबानी जी जो कहेंगे उस पर चलेगा और हमने देखा है कि एक रेंज में शेयर रहा है, 1380 रुपये से लेकर 1440-50 रुपये की रेंज रही है। अब देखते हैं कि क्या ऐलान आते हैं। जो की थिंग्स हैं जो हमें सुनने हैं ना, देखिए एआई को लेकर मुकेश अंबानी क्या बोलते हैं, जियो और रिटेल की लिस्टिंग के बारे में क्या नया अपडेट देते हैं, और एक और चीज़ होगी कि जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जिसमें कि हाइड्रोजन है, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग है, इसको लेकर क्या कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी हम फिर से जाएंगे उनके स्पीच पे और उन्हें सुनेंगे। लेकिन यही मोटा मोटी चीज़ें हैं। और अगर हम मार्केट की बात करें शरद, तो हमने सुबह सुबह साफ साफ कहा था कि आज का दिन भी एक रेंज में निकल जाएगा और एक रेंज के अंदर उठापटक होगी, लेकिन बाजार कोई ऐसे डायरेक्शनल मूव आज के सत्र में देखा नहीं और एग्जैक्टली आज हम वही होते हुए देख रहे हैं। आज अगर आप देखिए तो निफ्टी की जो रेंज रही है कितने 100 पॉइंट के आसपास की रेंज रही है और इस वक्त दोनों के दोनों इंडेक्स ना सिर्फ सपाट है बल्कि लाल निशान में भी आ रहे हैं। तो ऊपरी स्तरों पर कोई भरोसा बन नहीं रहा है और हमने कहा भी था कि नहीं ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, ऊपर अगर थोड़ा जाता है तो अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आप फंसे हुए महसूस करें तो निकलने की कोशिश करें। लेकिन देखिए निफ्टी बैंक भी 50 अंक नीचे आपको दिखाई देगा और इस वक्त जो डिक्लाइंस की जो संख्या है वो बाजार में आपको ज्यादा दिखेगी। करीब 1421 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं और 1316 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रेशर साफ है, 2 दिन का वीकेंड है, लोग अनिश्चितता लेके नहीं जाना चाहते हैं कि कब ट्रंप या फिर ट्रंप के कोई सहयोगी आके बोल दें। लेकिन यह है कि अब अगला जो बाजार के लिए शरद जो ट्रिगर होंगे ना, 2-4 ट्रिगर हैं जो बाजार को हो सकता है कि एक दिशा देने का काम करें। एक तो आज शाम को जीडीपी के नंबर आएंगे, Q1 जीडीपी के, देखते हैं कि जीडीपी कितनी आती है पहली तिमाही की। 1 सितंबर को ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आएंगे। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनीज में थोड़ी गिरावट बढ़ रही है। स्पेशली अगर हम एमएनएम की बात करें तो 4 सत्र में 6% टूट गया है। 3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें दरें किस चीज़ पर कितनी दरें होंगी,
उस पर नजर रहेगी। और 16-17 सितंबर को यूएस फेड की बैठक है जिसमें दरों में कटौती पर फैसला होना है। और ज्यादातर लोग मान के चल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि 0.25% का रेट कट होने जा रहा है सितंबर की पॉलिसी में, और ऐसे इंडिकेशंस जेरोम पावेल ने भी दे दिए हैं। तो ये कुछ आगे ट्रिगर्स बनेंगे, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि बाजार में इसी तरह से उथल पुथल वाली माहौल ही हम देखेंगे। और आज का सत्र देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमने कल इसी लेवल पे थे, 24,500 पर क्लोजिंग हुई थी, 24,505 पर निफ्टी को आप देख रहे हैं। तो आज कुछ हुआ ही नहीं बाजार में, ऐसा लग रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा लग रहा था कि रिकवर हो जाएगा, 54,000 के ऊपर निकला भी इंट्राडे में, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि 53,800 के आसपास के आप लेवल देखेंगे। तो बड़ा दिशाहीन सा बाजार है आज। वो मतलब थोड़े वॉल्यूम भी थोड़े कम जरूर हैं, और कोई जब तक निश्चितता नहीं आएगी बाजार के लिए, तब तक बाजार में हम इसी तरह के ट्रेड देखेंगे। कन्विक्शन का साफ साफ अभाव है। जब तक 25,000 के लेवल को फिर से निफ्टी अचीव नहीं करता है, जब तक निफ्टी बैंक 55,000 को रीगेन नहीं करता है, तब तक बाजार में मुझे लगता है कि हम इसी तरह का कारोबार होते हुए देखेंगे। शरद जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखने मिल रहा है। और रुपी की बात करें तो रिकॉर्ड लो लेवल्स पे आ गया है। डायरेक्टर साहब एक बार रुपी का चार्ट फायर करें, 88 रुपीज़ से ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गया है। इसमें 2-3 एंगल्स हैं। एक तो ऑफकोर्स रुपी की डिप्रिसिएशन की जो हम बात कर रहे थे वो हो रहा है कि यूएस टैरिफ का जो 50% लगा है उसका तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, और इसके अलावा एफआई सेलिंग प्रेशर आ रही है। लेकिन याद रखिए इंडिया और चाइना का जो युआन है वो भी रिकॉर्ड लो लेवल्स पे आ गया। याद रखिए इंडिया का 50% टैरिफ है, चाइना का 30%। तो अगर डिप्रिशिएट होता है इंडियन रुपीस तो एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और आज याद रखिए आरबीआई जो है कंडक्ट भी कर रहा है वीआरआर और गवर्नमेंट बॉन्ड एक्शन। तो इसके कारण जो है हमें देखने मिल रहे हैं कि डॉलर रुपीज़ में जो है मोमेंटम बहुत चेंज आ रही है और गिरते जा रहा है। 88 के ऊपर जो है डॉलर चला गया, यानी कि रुपी अप्रिशिएट करके रिकॉर्ड लोस टच कर दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कपिल शाह एमके ग्लोबल से। गुड आफ्टरनून कपिल। बाजार में 2-3 अहम चीज चल रही है। रिलायंस एजीएम मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, डॉलर रिकॉर्ड लोस पे आ गए हैं। बाजार भी देखे तो भी शुरुआती स्तर पे रिकवरी आई थी, वो धीरे धीरे करके थोड़ा लूज आउट जरूर कर रहा है, बट हालांकि पॉजिटिव पे है सेंसेक्स और निफ्टी। अब किस तरह आप देख रहे हैं बाजार की, क्या रणनीति होनी चाहिए? और याद रखिए आज आखिरी दिन है ट्रेडिंग सेशन का और ट्यूसडे को जो है एक्सपायरीज आने वाले, तो उस बेसिस पे निफ्टी बैंक पे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए, और अगर ट्यूसडे तक लेके जाना है ट्रेड तो क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मार्केट का हम देखते हैं तो काफी सहन सा गया है। मीन्स पिछले जस्ट हम एक एनालिसिस था कि पिछले 17 दिनों में मार्केट 700 पॉइंट की रेंज में 70% ऑफ टाइम रहा हुआ है। तो एक काफी कंसोलिडेशन पैच रहा हुआ है। ऊपर में हम लगातार देख रहे हैं कि 25,200 पे एक रिएक्शन देखने मिल रहा है, और नीचे में कहाँ ना कहाँ पे 24,350 24,400 से कुछ हमें रिबाउंड्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट अपने जो लोअर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैच के यहाँ पे है आ गया है। इसी के साथ में ये अपना वीक एंड भी है और मंथ एंड भी है। तो जब भी मंथ एंड होता है तो जस्ट हम एक चार्ट का स्कैन करते हैं ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे क्या कैसे चल रहे हैं। तो काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे स्टॉक्स, भले कि हालांकि उनका वेटेज मार्केट में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो उसका लास्ट पेन पॉइंट था उसके नीचे में आ रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन सा मार्केट में सेट होते हुए देखने मिल रहा है। मंथली चार्ट पे, लाइन चार्ट पे हम देखते हैं तो वेरी मच क्लोज बाय टू द डबल टॉप जैसी फॉर्मेशन सिचुएशन देखने मिल रही है, लेकिन इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन का कंफर्मेशन आना भी बाकी है। तो हम अभी मार्केट में 24,700 के लेवल से नीचे जब तक सस्टेन करता है, हमारा एक बेरिश व्यू हम मेंटेन कर रहे हैं। 24,400 का एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, लेकिन 24,400 का सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो मार्केट में नेक्स्ट मंथ में पॉसिबिलिटी रहेगी कि 24,200 से लेकर 23,800 की जो बैंड है वहां पे मार्केट के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। इंडेक्स पर व्यू हो गया कपिल का। कपिल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा, रिलायंस के एजीएम से जो भी की टेकअवेज आ रहे हैं ना, हमारी टिकट टीम लगातार फ्लैश कर रही है आपके लिए, और जो भी प्रमुख बातें होंगी जो आपके काम की होंगी आप नीचे उसको देख सकते हैं। आरआईएल ने पिछले 3 साल में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुकेश अंबानी ने बताई है, और उन्होंने ये कहा है, नोटिस किया है कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, लेकिन जो हमारी नज़र होगी कि आईपीओ को लेकर क्या कहते हैं,
फर्दर न्यू एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कहते हैं और रिटेल कारोबार के विस्तार को लेकर मुकेश अंबानी और एआई को लेकर उनके कमेंट्स क्या आते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी, वो भी आपको सामने लेकर आएंगे। उन्होंने कहा है कि एआई को नए ग्रोथ इंजन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। ये प्रदर्शन है शेयर का, हालांकि कोई खास ट्रेंड आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ जिनको आंकड़ों में दिलचस्पी है उनके लिए ये सारी की सारी चीजें हम सामने लेकर आते हैं। लेकिन कपिल भाई आप जरा अपने स्टॉक्स बताइए। आज तो बड़ा ही लैक लस्टर सा माहौल है, कुछ कुछ सेगमेंट में, कंजम्पशन में, एफएमसीजी में आज हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक में भी थोड़ी थोड़ी सी तेजी है। सलाह क्या होगी आपकी स्टॉक्स को लेकर, कहां पर आपको कन्विक्शन आ रहा है? जी बिल्कुल। हाँ, यानी कमोडिटीज ड्रिवन या फिर जीएसटी की जो डायरेक्टली बेनिफिशियरी स्टॉक्स है वहां पे पहले भी मोमेंटम चली हुई थी और आज भी हमें इसका फॉलो ऑन साइन देखने मिल रहा है। हालांकि जो मेरा स्टॉक्स का टेक्निकल चार्ट पे जो अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वहां पे सबसे पहला मुझे हिंडाल्को का चार्ट का सेटअप अच्छा लगता है। मेटल स्टॉक्स इतना अच्छा तो नहीं कर रहे, लेकिन मेटल स्टॉक्स के अंदर जो नॉन फेरस की सेगमेंट है वहां पे हिंडाल्को का थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने में मिला हुआ है। हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉक को इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहा है। तो 703 के लेवल पे हमारा हिंडाल्को बाय बनता है। 688 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 735 के हमें टारगेट देखने मिल रहे हैं। ये हिंडाल्को का बाय के साइड का ट्रेड रहा और एक ट्रेड है शॉर्ट की साइड का जहां पे भारत फोर्ज ध्यान में आता है। पिछले काफी दिनों का जो उसने लो बनाया होता वो आज हमें ब्रेकडाउन होते हुए देखने मिल रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे भी इसका स्ट्रक्चर वीक रहा हुआ है। तो 1100 के लेवल पे भारत फोर्ज शॉर्ट बनता है 1140 के स्टॉप लॉस के साथ और नीचे में टारगेट 1020 के रहेंगे। ठीक है, भारत फोर्ज के लिए 1140 का टारगेट बनेगा और हिंडाल्को के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 735 का, 688 रुपए का स्टॉप लॉस। 1000, अच्छा भारत फोर्ज सेल है, ठीक है माफ कीजिएगा, 1140 का स्टॉप लॉस है और 1020 के टारगेट हैं भारत फोर्ज के लिए। एक सेल की रिकमेंडेशन भारत फोर्ज की और हिंडाल्को बाइंग की रिकमेंडेशन है कपिल की तरफ से। एक और शेयर कपिल जी आपसे हम जानना चाहेंगे जहां थोड़ा मोमेंटम अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल भी हमने तेजी देखी और आज भी ये शेयर मजबूत है, इंडेक्स का एक हेवीवेट है, एलएनटी। एलएनटी को लेकर आपका व्यू क्या है? 36 रुपए के भाव हैं एलएनटी, क्या आप यहां से और चलते हुए देख रहे हैं शेयर को? जी, पिछले काफी दिनों से जो कैपिटल गुड्स की सेगमेंट थी वो कहां ना कहां पे एक साइडवेज और कुछ कुछ स्टॉक्स हमें साइडवेज की वजह से देखने मिले हुए थे। क्यूमिंस ने काफी अच्छा लीड किया हुआ है, एबीबी और सीमेंट्स ने काफी लैगार्ड पे परफॉर्म किया हुआ है और एलएनटी एक स्टॉक है जहां पे ना ही तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम ना ही तो डाउन साइड मोमेंटम हमें इसमें देखने मिली हुई है। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में ही मूव कर रहा है, नीचे में कहां ना कहां पे 3450 और ऊपर में 3700 के लेवल्स पे हमें देखने मिल रहा है। अभी स्टॉक ऊपर के सहज से थोड़ा सा स्लाइड होके मिडिल रेंज के यहाँ पे आ गया 3550 और थोड़ा सा 2 दिन से हमें पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो अगेन कोई ज्यादा ट्रेंड चेंजिंग सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन अगर हमें इसमें देखना होता है तो 3550 के स्टॉप लॉस से इसमें ट्रेड देख सकते हैं और ऊपर में जो उसके पहले की अपसाइड बैंड है 3700 की, तो उतनी उसकी अपसाइड मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, अगर आपको एक छोटा ट्रेड लेना हो एलएनटी में 3550 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें तेजी कर सकते हैं। 3700 के टारगेट के लिए 3612 के भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं। और रिलायंस के एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा है कि जो जियो की लिस्टिंग है उनकी टेलीकॉम आर्म को वो जनवरी से लेके जून तक जो है आप देख सकते हैं वो आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि वैल्यू अनलॉकिंग फर्स्ट हाफ में देखने मिल सकता है। इसके और भी कुछ डिटेल्स जो है जियो के देखने मिल रहे हैं। चलिए एजीएम की तरफ चलते हैं वापस। Your platforms for MSMEs and enterprises alike. From franchisee management to AI-powered solutions across verticals, we're enabling every business to compete globally. This is not just digitization, it's the democratization of enterprise-grade technology. Jio's transformation into a deep tech company is now unmistakable. We've done it on a technology stack that is designed, developed, and deployed entirely in India by Jio's own engineers. From developing our own 5G core to rolling out the fastest 5G services in the world, and now deploying our global first Home Connect technology
we have cemented our place as a deep tech company. Our proprietary Home Connect technology, UBR, an industry-first innovation, has revolutionized home broadband, offering gigabit speeds while avoiding cable cut disruptions and supporting high-end applications. Jio AirFiber is now the largest fixed wireless provider in the world, adding over 1 million homes per month. And now with the integration of AI, we're building a stack that will power intelligent services across India. From Gen AI-enabled customer journeys to AI-powered diagnostics and automation, Jio is laying the foundation for India to become the world's first AI-native digital economy. Building on this foundation, Jio True 5G has redefined speed, reliability, and the reach of digital connectivity. Today, more than 220 million users are benefiting from Jio's True 5G network. Friends, at the heart of all our offerings is our customer. At Jio, customer service is not a department, it is a promise. We are redesigning every touchpoint to delight the user, not just serve them. Whether it's discovering, buying, using, or resolving issues, our systems are now event-driven and API-enabled with Gen AI at the forefront. This transformation is structural, aligning our architecture and feedback loops to deliver precision and delight at scale. This relentless focus on innovation has also driven our strongest financial performance yet, with record revenue, profitability, and customer engagement. As we look ahead, Jio's journey will be beyond India. Our innovative technologies are now ready to be deployed globally and solve global challenges. With strategic partnerships and a clear roadmap, we will take Jio services international, creating value for partners and shareholders alike. Behind every achievement is a mission to serve customers with heart, to connect the unconnected, uplift every citizen. As we move forward, Jio remains committed to this service. जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट अपडेट भी आ रही है और ये देखिए जियो के आईपीओ लाने पर काम चल रहा है, माने काम शुरू हो चुका है और ऑफ कोर्स इसका जो अंजाम है 2026 के पहले हाफ में आपको देखने मिल सकता है। अभी आंकड़ा जो है जनवरी से जून तक हो सकता है और भारत के बाहर भी जियो के ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है मैनेजमेंट का दिखने मिल रहा है। अभिषेक, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखें तो थोड़ी सी अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, आरपू भी बढ़ने वाले हैं, डेटा हैवी सर्विसेज पे फोकस रहेगा और पूरी तरह हम देख सकते हैं कि अब जो है वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, वॉल्यूम की तरफ नहीं चल रहा है। किस तरह आप देख रहे हैं अभी टेलीकॉम सेगमेंट पे? और डायरेक्टर साहब टेलीकॉम स्टॉक्स को भी फायर करते रहे। शरद, पहले तो देखिए काफ़ी ये वेलकम स्टेप है जो मुकेश अंबानी ने अपडेट दे दिया है कि जियो की लिस्टिंग अगले साल के पहले 6 महीने में कर दिया जाएगा, यानी कि जनवरी से लेकर जून के बीच में। अब ये काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही थी और हम चर्चा कर भी रहे हैं कि रिलायंस अब क्या ना कि धीरे धीरे हो जानी चाहिए होल्डिंग कंपनी। आपने जियो फाइनेंशियल को अलग कर दिया, आप टेलीकॉम को अलग करेंगे, फिर हम ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि बहुत समय लगेगा जब रिटेल कारोबार को भी अलग कर दिया जाएगा। तो रिलायंस की अहमियत क्या रह जाएगी? एक होल्डिंग कंपनी तौर पर रह जाएगी, जिसमें कि एनर्जी वाला बिजनेस बच जाएगा, कुछ और छोटे मोटे कारोबार रिलायंस में रहेंगे। लेकिन ये टेलीकॉम में मुझे लगता है कि आगे चल के ना एक्सपर्ट ज़्यादा इस पर बेहतर रणनीति दे पाएंगे। आरपू बढ़ाने को लेकर काम शुरू कर चुके हैं। 200 रुपए के आसपास, 200 रुपए के नीचे के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर थे और ये बार बार टेलीकॉम इंडस्ट्री ने और एक सुर में कहा है कि नहीं, 300 रुपए के आसपास तक के ही आरपू सस्टेनेबल हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अच्छे हैं। तो हाल फिलहाल हमने देखा कि पहले जियो ने अपने जो एंट्री लेवल वाले 1 GB वाले प्लान को डिसकंटिन्यू किया, उसके बाद भारतीय एयरटेल ने भी सेम चीज किया। दोनों शेयरों में हमने हाल फिलहाल तेजी ठीक ठाक देखी थी इस खबर के चलते। और रिलायंस के अगर हम थोड़ी देर में एसओटीपी वैल्यूएशन, यानी कि अगर 1400 रुपए शेयर का भाव है, उसमें से जियो टेलीकॉम वाले का हिस्सा कितना है ये भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि आप इनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने दीजिए और उससे निवेशों को बड़ा ईजी हो जाता है शरद कोई कॉल लेने में।
फिर आपको ना कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हम भारतीय एयरटेल को कंपेयर करते हैं तो रिलायंस को भी हम टेलीकॉम प्ले करके देख लेते हैं, ऑयल एंड गैस की बात आती है तो फिर से रिलायंस टेलीकॉम को हम देख लेते हैं। रिटेल कारोबार अपने आप में इतना बड़ा हो गया है और लगातार एक्विजिशन कर रहे हैं मुकेश अंबानी उस स्पेस में, तो ये एक बढ़िया चीज़ है और एक ये वेलकम स्टेप ज़रूर है। हालांकि रिलायंस में आप देखिए जो अभी करीब 1394 रुपये के हम भाव देख रहे थे और ये जो शेयर है ये नीचे आके कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। 1.5% के आसपास की नरमी है। तो मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या कहा है, भारत के बाहर भी जियो की ऑपरेशन शुरू करेंगे। क्या बाजार इस चीज़ को लेकर परेशान है? और थोड़ा परेशान होना भी चाहिए। हमने देखा है कि हमारी कंपनियां जब बाहर गई तो थोड़ी सी ना दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुझे याद है कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि धीरू भाई अंबानी ग्रुप जो अनिल अंबानी ग्रुप वाली कंपनी थी, उन्होंने भी विदेश में टाइप्स किए थे अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं रही थी। भारती की बात करें, इनका भी अफ्रीका वाला कारोबार है, वहाँ पर ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ना निवेशक चिंतित होते हैं। निवेशक ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित होते हैं कि आप पैसे निकाल के कंपनी से आप कहाँ डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और एक्सपर्ट के माध्यम से समझेंगे कि आखिर वो कैसे देख रहे हैं। ये तो कंपनी को एक्सपेंड करने की बातचीत कर रहे हैं मुकेश भाई, लेकिन पैसा निकलना, कहीं निवेश होना, प्राइमरीली इसको थोड़ा सा ना बाजार नेगेटिव मानता लगता है कि थोड़ी सी अनिश्चितता आएगी। आप क्या एसेट क्रिएट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप क्या इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेकर थोड़ी सी ना अनिश्चितता का माहौल हो जाता है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये ऊपरी स्तरों से गिरावट आ रही है। अदरवाइज शरद, ये एक बढ़िया स्टेप है और अगर रिटेल के आईपीओ को लेकर, रिटेल की लिस्टिंग को लेकर भी अगर मुकेश अंबानी कोई बयान दे देते हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा होगा। ये हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। 2019 में मुकेश भाई ने कहा था कि हम जियो की लिस्टिंग करवाएंगे अगले 5 साल में। 5 साल में क्या, 6 साल में भी हुआ नहीं। अब ये फाइनल टाइमलाइन उन्होंने दे दी है कि 2026 की पहली छमाही में हो जाएगी। आप जरा रिलायंस के शेयर को लेकर व्यू दीजिए कि क्या करना चाहिए शेयर में। तो देखिए, एक वेलकम स्टेप है ये, एक वैल्यू अनलॉक हो रही है। जियो का जो टेलीकॉम बिजनेस है वो एक अलग सेपरेट एंटिटी लिस्ट होगा, तो रिलायंस के निवेशक को तो यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट जरूर दिखेगा। ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण प्राइस थोड़ा नीचे आया आज, लेकिन हमें लगता है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में। एनी हाउ फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में जरूर ये वैल्यू अनलॉक होगा, तो उस समय जरूर बेनिफिट। 1360 1370 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट में गिरावट है, उसके चलते ये स्टॉक में भी एक सेलिंग प्रेशर तो बना हुआ है, लेकिन डाउन साइड में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है टूवर्ड्स 1320 1330 तो वो एक अच्छा नियर टर्म के हिसाब से सपोर्ट लेवल है। उसके आसपास अगर रिलायंस मिलता है तो वहाँ बिल्कुल बाय करके थोड़ा निवेशित रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 1440 जो कि मल्टीपल टाइम स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ, पिछले 3-4 हफ्तों में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अटेम्प्ट जरूर लिया स्टॉक ने, लेकिन 1440 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो वही एक मेजर सप्लाई जोन अभी बना हुआ है स्टॉक में, और हमें लगता है जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है 1330 से 1430 की रेंज में, और 1430 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छी चाल आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी रहेगी डिक्लाइन में। बाय ऑन डिक्लाइन की जो है रणनीति जरूर आ रही है। एक बार भारतीय एयरटेल के ऊपर फोकस लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइक आ गई है, उसको भी एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, अफ्रीका में इनका बिजनेस स्टेबल है, और आप देखिए एक स्पाइक आ गया भारतीय एयरटेल पे। तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे ज़्यादा जो है जोर बाजार दे रहा है, वही देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए, हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में सुदीप जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेंगी। एक बार इंडस स्टार और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स भी लगाए, क्योंकि ये भी टेलीकॉम स्टॉक्स है, और पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में जो है आरपू की अपमूव देखने वाले हैं, और एक वैल्यू अनलॉकिंग आने वाला है, यानी कि आपके पास 3 या 4 कंपेरेबल टेलीकॉम के डायरेक्ट प्लेस रहने वाले हैं एनालिसिस के लिए। हालांकि देखें तो रिलायंस जो है
गिरावट ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग 1.5% गिरा हुआ है। रिकवरी का बहुत माइनर अटेम्प्ट आ रहा है, तो इस पे ऑफ कोर्स डिटेल्स रहेंगी कि और क्या जो है इस एजीएम से सामने आते हैं। कपिल, एक बार भारती एयरटेल का चार्ट चेक ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या मूव आ रहा है। स्टॉक हरे निशान में आ गया है और इंडस स्टार भी आ गया है। वोडाफोन आइडिया को थोड़ा अलग रखते हैं कॉन्वर्सेशन में, एक बार भारती एयरटेल पे आपकी राय चाहिए। जी भारतीय एयरटेल बेसिकली वैसा स्टॉक है कि जब भी मार्केट में काफी सारे अपस्विंग डाउनस्विंग आया हुआ है तो ये स्टॉक काफी स्टेबल और स्लोली स्टेडीली अप मूव ही उसने दिखाया हुआ है। हालांकि पिछले मार्केट के कंसोलिडेशन के साथ में ये स्टॉक भी एक कंसोलिडेशन पैथ से गुजर रहा है। कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक ऊपर में 1950 और नीचे में 1850, तो ये 100 पॉइंट की रेंज में स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड कर लिया हुआ है। लेकिन अंडरलाइन टोन स्ट्रक्चर स्टॉक का साइडवेज टू पॉजिटिव ही बना हुआ है। और स्टॉक में अगर यहाँ से कुछ, हालांकि आज तो थोड़ा सा मूव मिला हुआ है, लेकिन मार्केट के चलते अगर इसमें स्टॉक में कुछ नीचे में डिक्लाइनिंग मोमेंटम मिलती है और 1850 के यहाँ पे स्टॉक आता है तो एक बाय की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना मिलना चाहिए। ये पोर्टफोलियो को कहाँ ना कहाँ पे एक डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने वाला स्टॉक है। और एज सच हमारी रैंकिंग ऑर्डर जो हम देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन की बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड प्राइस मोमेंटम के हिसाब से, तो हमारे टॉप 3 स्टॉक्स जो टेलीकॉम में बैठते हैं वो भारतीय हेक्सा, भारतीय एयरटेल और आईटीआई के होते हैं। और जो 3 बॉटम ऑफ द स्टॉक्स है जहां पे मार्केट का काफी खराब परफॉर्मेंस रहा हुआ है वो एचएफसीएल, रोट मोबाइल और टीटीएमएल, ये हमारा पैकिंग ऑर्डर रहा हुआ है। एयरटेल, रूट मोबाइल और टीटीएमएल ये फोकस में रहा है। लेकिन चलिए एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभी अभी रिलायंस के एजीएम से ये खबर निकल के आ रही है कि अगले साल की पहली छमाही में रिलायंस जियो की लिस्टिंग कर ली जाएगी। और अगर हम एसओटीपी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है जियो ही कमांड करता है। मतलब जियो एज अ डिजिटल सर्विस अगर आप कहें तो करीब 550 रुपए के आसपास की वैल्यू अकेले जियो की है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है मुकेश अंबानी ने कि हम जियो को ग्लोबल करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि शेयर थोड़ा नीचे आ गया। आप कैसे देखते हैं सर इस कदम को और कितना मेजर स्टेप है ये वैल्यू अनलॉकिंग के लिए? ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये पहला कदम है वैल्यू अनलॉकिंग का, ये मैं मानता हूँ। देखिए जियो जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेटफॉर्म है और इसका आईपीओ जैसे ही होगा एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी बनेगा एग्जिस्टिंग रिलायंस शेयर होल्डर्स के लिए। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में उम्मीद ये भी है कि रिटेल, एफएमसीजी और न्यू एनर्जी में भी वैल्यू अनलॉकिंग के स्टेप्स लिए जाएंगे। अभी एजीएम चल रहा है, देखते हैं क्या और अनाउंसमेंट आता है। जी हेलो सुदीप सर, एक बार मार्केट पर आप जरा व्यू दीजिए। मार्केट पर भी एक जरा अपना व्यू दीजिए कि ये जो अनिश्चितता के बादल हैं टैरिफ को लेकर, ये कब तक परेशान करेंगे सर? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है और मार्केट सारा डाइजेस्ट कर जा रहा है। रेटिंग अपग्रेड आया, जीएसटी को लेकर अच्छे बयान आया पीएम मोदी के, जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, लेकिन बाजार चल नहीं रहा है। प्रॉब्लम कहां पर है आपके हिसाब से? देखिए प्रॉब्लम तो वही जगह पे है कि टैरिफ जो लगाया गया है इसके चलते लगभग 50% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस करीब 40 से 45 बिलियन डॉलर इफेक्ट हो रहा है। और 50% टैरिफ जब लगाया जाता है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आप 50 लगाओ या 75 लगाओ या 100% लगाओ, बात तो एक ही है, योर प्रोडक्ट इज बिकमिंग अनकम्पिटिटिव, यू वोंट बी एबल टू एक्सपोर्ट टू यूएस मार्केट। और ये स्थिति अगर परसिस्ट करता है तो इंडिया का जीडीपी लगभग 0.5% कम हो जाएगा, ये उम्मीद है, एक कैलकुलेशन है। सरकार की तरफ से बहुत सारे ठोस कदम लिए जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये इम्पैक्ट को नेगेट करने के लिए जो पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। पर अभी स्थिति बहुत ही वोलेटाइल है, तो मार्केट भी इसीलिए थोड़ा अनिश्चयता के दौर से गुजर रहा है। एफआईआई की तरफ से जबरदस्त सेलिंग आ रही है और वो भी ये गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ज़रूर देखने मिल रही है। लेकिन सुदीप सर, शरद यार, आपसे बस सवाल पूछना था कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेके जो है थोड़ी सी अनसर्टिनिटी ज़रूर आ गई है और ऑफ कोर्स भारती एयरटेल का अफ्रीका में अच्छा प्रेजेंस है और स्टेबल बिजनेस है, उतना ख़राब नहीं है। तो सवाल उठता है कि कहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगा, या कोई मिडिल ईस्ट प्लेयर या कोई यूरोपियन प्लेयर के साथ कोई टेलीकॉम का टाई अप होगा जियो का। तो थोड़ी सी अनसर्टिनिटी ज़रूर है, उसके कारण जो हम थोड़ी सी देख रहे हैं कि करेक्शन स्टॉक में आ रहा है। वही भारतीय एयरटेल की बात करें तो वहाँ पे अपमूव देखने मिल रहा है। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन जियो बाहर जा रहा है, वो आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए
जैसे आपने अभी बताया, इंटरनेशनल एक्सपेंशन में कोई फंडामेंटली कोई बुराई नहीं। इसमें क्या होता है, इनिशियली कुछ साल तक बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में रहता है। जो भारतीय एयरटेल के क्षेत्र में भी देखा गया था, उनका अफ्रीका बिजनेस स्टेबलाइज करने में कुछ साल लग गए थे। अब वो बिजनेस स्टेबल हो गया है, अच्छा नतीजा दिखा रहा है और अब वो वैल्यू देखना होगा वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे। देखें तो यहाँ पे जो है गिरावट बढ़ते ही जा रही है और ऑफ कोर्स एजीएम पे भी जो है अनाउंसमेंट आया था कि जियो की लिस्टिंग जो है फर्स्ट हाफ 2026 को होगी, लेकिन देखिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन के कारण जो है कुछ अनाउंसमेंट आई तो थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर आ रही है, बट देखते हैं कि किस तरह पैन आउट होता है। अभी भी 45 मिनट ट्रेड की बाकी है और एजीएम चल रहा है, कुछ और अनाउंसमेंट्स आते हैं तो स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन एक और एसेट क्लास वॉलेटाइल है और रुपी अपने रिकॉर्ड लोज को टच किया। रुपी में कमज़ोरी देखने को मिल रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया 88 रुपीज़ के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। रुपए की कमजोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिनहान बैंक के कुणाल सोढ़ानी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल। रुपी का एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स एफआई की सेलिंग प्रेशर तो हमने देखी है और टैरिफ का जो टेंशन है 50% का वो भी लगा है, लेकिन इनिशियली आप क्या जो इसके इम्पैक्ट एनालिसिस देख सकते हैं, इसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्यों ऐसा हुआ है? आज आई थिंक आरबीआई एक इम्पोर्टेंट वीआरआर और गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन भी करेगा। तो सबसे पहले जैसे आपने राइटली शुरुआत की कि जो अगर हम फ्लोज की बात करें, जो इक्विटी फ्लोज की बात करें, तो अगर जुलाई मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 करोड़ का आउटफ्लो दिखा गया इक्विटी से, और अगर अगस्त की बात करें तो अब तक 29,000 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है इक्विटी मार्केट से। सो नेट नेट जुलाई अगस्त दोनों आउटफ्लोज रहे, तो स्टार्टिंग से प्रेशर तो बना ही रहा रुपी पे, बट एट द सेम टाइम जो डेवलपमेंट बन रहा है टैरिफ फ्रंट पे, जो यूएस ने इम्पोज की है एडिशनल 25% की टैरिफ, और अगर हम दूसरे साउथ एशियन नेशंस की बात करें तो वहां से ऑलमोस्ट डबल टैरिफ हम पे करें। अब इसमें हो क्या रहा है कि रुपी और चाइनीज युआन को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज चाइना वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स है, एंड पर्टिकुलरली अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करें जहां पे इंडिया का भी दबदबा है, वो है टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जहाँ पे डायरेक्टली कंपटीशन चाइना से भी होता है। सो अगर लास्ट 4 महीने की अगर हम बात करें और हम अगर चार्ट्स देखें, सो रुपी ऑलमोस्ट 6% गिरा है चाइनीज युआन के सामने, और ये हुआ इसलिए रहा है कि शायद वो जो युआन रुपी एक्सचेंज रेट है वो शायद इंडिया के लिए अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रखने के लिए, बिकॉज यूएस बाउंड सेक्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया वहां पे अगर टैरिफ्स बढ़े तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्पनसेट करना होगा, और शायद कहीं ना कहीं ये इस माध्यम से रुपी डेप्रिसिएशन एक तरीके का फॉर्म है जहां से थोड़ा एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली और रिलेटिवली चीपर हो सकते हैं चाइनीज गुड से, और थोड़ा सा कुशन मिल सकता है उन हायर टैरिफ से रिलीफ मिलने का, एंड पोटेंशियली जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ उसे थोड़ा नैरो करने का। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चाइनीज युआन को भी मद्देनजर रखें, जिससे हमें थोड़ा क्ल्यू मिलता है कि रुपी किस तरह बिहेव कर रहा है। तीसरी चीज, बिकॉज ये मंथ एंड है, थोड़ा सा मंथ एंड ऑयल डिमांड देखी जा रही है, वो और पुश कर रहा है रुपी को थोड़ा वीकन करने में, एंड अगर हम एशियन करेंसीज की बात करें तभी भी रुपी वन ऑफ द वर्स्ट एशियन करेंसीज है पूरे साल को अगर हम मद्देनजर रखें। तो ये 4 चीजें आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस वजह से थोड़ी सी रुपी वीकनेस परसिस्ट करेगी। पॉजिटिव्स देखें जो इंडिया की तरफ है, सीपीआई डेटा अभी तक लोअर ही है, एफएक्स रिजर्व हमारे पास डिसेंट है, 11 महीने का इंपोर्ट कवर है, ऑलमोस्ट $690 बिलियन का एफएक्स रिजर्व है। सो ये कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जा रहा है आज भी बिट्स एंड पीसेस में, बट अगर एक ऑल टाइम लो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा पैनिक होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, काफी ट्रेडिंग पोजीशंस रिवर्स होती है, जिससे एक 88 क्रॉस करके ही हमने ऑलमोस्ट 30 से 35 पैसे का मूव और देख लिया आगे। तो आगे मेरे हिसाब से वीकनेस थोड़ी सी परसिस्ट करेगी। नीचे की तरफ अगर मैं लेवल्स देखूं तो एक 8720 खासा बेस बनना चाहिए यहाँ पे, और इमीडिएट जो नियर ऑल टाइम हाई अगर आप तो आज ब्रेक हो गया है बट 8795 था, उसके नीचे अगर आज क्लोज होता है तो मे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल, अपडेट देने के लिए रुपए पर। थैंक यू सो मच।
हमारे साथ जुड़ के बताने के लिए कि रुपए में वीकनेस क्या हो रही है और यहाँ से आउटलुक कैसा आप देख रहे हैं। लेकिन रिलायंस के शेयर पर एक बार फिर से लौटेंगे और रिलायंस हम देख रहे हैं कि 1.5% की गिरावट है। जो 3 अहम चीजें मुकेश अंबानी ने कही हैं आपको बता देते हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि जियो की जो लिस्टिंग है अगले साल यानी कि 2026 की पहली छमाही में वो करा देंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि रिलायंस को वो जियो को ग्लोबल करेंगे, विदेशों में कारोबार को बढ़ाएंगे और उस बयान के बाद हमने देखा कि शेयर में तेज गिरावट आई। और अब तीसरी चीज ये निकल के आ रही है कि एआई और डेटा सेंटर के लिए कंपनी एक अलग सब्सिडरी कंपनी यानी कि एक अलग कंपनी बनाई जाएगी, उसमें कारोबार को शिफ्ट किया जाएगा। अब ये रिलायंस का एसओटीपी सम ऑफ द टोटल पार्ट्स, ये वैल्यूएशन सामने आपके कि जो अभी शेयर का भाव है उसमें किसका किसका कितना कितना हिस्सा है। एनर्जी का आप सामने देख सकते हैं 454 रुपए, टेलीकॉम का 607 रुपए का, रिटेल का 569 रुपए का। तो अगर आप सबसे बड़ा बिजनेस देखेंगे तो जो ब्रोकरेजेस जो असाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिलायंस जियो को, जो कि टेलीकॉम वाली कंपनी है। तो अगर ये कंपनी अगर बाहर होती है रिलायंस से, इसको अलग करते हैं तो एक वैल्यू अनलॉकिंग निश्चित तौर पर होगी और फिर कुछ और जो बड़े छोटे जो बिजनेस है वो बड़े होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या फिर सोलर हो गया, उसके भी वैल्यूएशंस आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। चलिए कुछ और अगर चीजें निकल के आती हैं रिलायंस के एजीएम से, मुकेश अंबानी की स्पीच से, तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बाजार में हमने देखा कि जो ही रिलायंस का शेयर नीचे आया, मार्केट को भी नीचे खींच के लाया। निफ्टी में हम जो गिरावट देख रहे हैं करीब 30 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब 100 अंकों के आसपास की। हालांकि रिटेल और एफएमसीजी शेयरों में आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। राजेश जी, एक राय आप जरा आईटीसी पर दीजिए। आईटीसी 400 रुपए के ऊपर आके फिर से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे चाल बढ़ा रहा है और आगे अब नजर है जीएसटी काउंसिल की बैठक पर। आईटीसी आपको लगता है कि अपने रेंज से निकलेगा, पैसे बनाने के इसमें मौके बनेंगे? 410 रुपए तक तो पहुंच गया आज ये। तो देखिए, करेक्शन के बाद रिकवरी तो बनी है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि इसमें जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब 420-25 के जोन में वो निकलना काफ़ी अहमियत रखेगा इस स्टॉक को यहाँ से इस वीकनेस के ट्रेंड से बाहर आने के लिए। तो 420-25 का लेवल हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ब्रेकआउट बनता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेजी भी बनते हुए दिख सकती है। हालांकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा बेयरिश ही है, तो अभी ज़्यादा बड़े टारगेट तो प्रोजेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी 420-25 के हर्डल को पहले ये क्रॉस करने में कामयाब होता है कि नहीं। अगर वो होता है देन ओनली फिर बड़े टारगेट इसमें अनफोल्ड होंगे। टाइम बिंग के लिए जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का, वो यहाँ पे पुल बैक के प्ले करने के लिए बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 402 रुपए का। ठीक है, 402 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके लिए आईटीसी में। कंजम्पशन का एक और प्ले है यूनाइटेड स्पिरिट्स। हालांकि पिछले 4 सत्र में शेयर गिर रहा था, आज अच्छी रिकवरी दिखाई है और जो भी तेजी बनी है वो सारी की सारी आज बाजार खुलने के बाद बनी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1300 रुपए के ऊपर आ गया है शेयर ये। कपिल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बताइए, क्या इसमें लॉन्ग करके जाएं या फिर वॉलेटाइल है तो इसको छोड़ दें, अवॉइड कर दें? जी, स्टॉक का तो करेक्शन काफी हो गया है। मीन 1650 से लेके 1300 तक के लेवल हमें देखने मिल चुके हैं और 1300 के लेवल से तकरीबन 6 से 7 फीट तक वहां पे बना हुआ है। और जो ये 1270 का जो लेवल था वो लास्ट टाइम का भी एक बॉटम लेवल बना था। जब भी फरवरी में स्टॉक गिरा था तो 1300 के लेवल से स्टॉक नॉर्मली रिबाउंड हमें देखने मिलता है वहां से। और आज के सत्र में ये सिर्फ पहला ही दिन है जहां पे स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है। तो ट्रेंड तो देखने जाएंगे तो वो तो नेगेटिव ही देखने मिलेगा, लेकिन एक कॉन्ट्रा बायबैक जरूर बन सकता है काफी किफायती स्टॉप लॉस के साथ में। बॉटम रिवर्सल ट्रेड रहेगा ये। 1312 के लेवल पे स्टॉक चल रहा है, तो इसका जो तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क भी हमें नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क का यहाँ पे 1275 का यहाँ पे बैठता है और ऊपर में जब ये मूव करता है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस और हर्डल उसके 1350 और 1375 के लेवल पे देखने मिल सकते हैं। तो हाँ, 1280 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। सेंसेक्स जो है आप देखिए 79,900 के आसपास 170 अंकों की गिरावट और दिन के ऊपरी स्तर से करीब 400 अंक नीचे आ गया है। बाजार में जो भरोसे की कमी है ना, वो साफ साफ आपको दिखाई देगा। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर राजेश जी से और कपिल जी से बातचीत करेंगे। आपने जाएगा नहीं। आपके कॉल्स क्या रहने वाले हैं, जरा बताएं। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून।
दोनों पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। पहला तो आई थिंक कोल इंडिया के साथ जाना चाहूंगा, 375 के आसपास चल रहा था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 395 और 400 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 367 का। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। मुझे लगता है अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो कोल इंडिया में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा मैं पीवीआर के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, 1120 के आसपास है, 1180 और 1200 पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1085 का। कंसिस्टेंटली स्टॉक में हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन बनते हुए हमने देखे, धीरे धीरे वीकली चार्ट्स पे भी ये स्टॉक स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 1085 एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा, उसके ऊपर ये जो बुलिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है। चलिए इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी अमूल के पिक्स पे। और यहाँ पे देखिए पीवीआर आइनॉक्स पे खरीदारी की राय है, टारगेट 1180, 1200, स्टॉप लॉस 1085 का। तो इस पे भी जो है पोजिशनल कॉल रहने वाला है। और दूसरा कॉल पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। कोल इंडिया एक डिविडेंड प्ले है, स्टेबल प्ले है, और ऑफ कोर्स ऐसे अनसर्टनिटी में जो है एक कोल इंडिया जैसा डिविडेंड प्ले भी एक डिसेंट पिक है। टारगेट 400 का, स्टॉप लॉस 365 का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है मार्केट्स है 3BT, ST, STBT ट्रेड्स और अगले हफ्ते की क्या तैयारी रहेगी वो सारे डेटा हम आपके पास लेके आएंगे। रिलायंस का EGM जो अभी भी चल रहा है और कंजम्पशन स्पेस पे जो है आप कह सकते हैं कि अभी जो है स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, जिस तरह जो रिलायंस रिटेल है वो देखें तो 20% का ग्रोथ अगले 3 साल में दे सकते हैं। तो अपडेट आ रहा है, लेकिन एक हल्की सी रिकवरी भी डेज लो से रिलायंस अटेम्प्ट ज़रूर कर रही है और ऑफ कोर्स रूपी रिकॉर्ड लोस पे है। लेकिन अभी इन दोनों चीज़ से जो है थोड़ा अलग हटते हैं, ग्रैनुअल्स इंडिया पे आते हैं। फार्मा स्पेस में जो है कुछ सेगमेंट्स में बाइंग अच्छी दिखने मिल रही है। ग्रैनुअल्स इंडिया का चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें, स्टॉक 5% ऊपर है और यहाँ पे देखें तो एक मोमेंटम बना के रखा है। राजेश जी, एक बार ग्रैनुअल्स इंडिया पे आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है आप ट्रैक कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा ऊपर लेवल से कम ज़रूर आया है, डेज हाई जो था वो 510 के ऊपर गया था, बट उसके अलावा भी बात करें तो स्टॉक अभी भी 5% ऊपर है। तो क्या रहेगी आपकी राय? तो देखिए जरूर यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा पुलबैक आज के सेशन में बना है और अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी स्टॉक यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे डेली चार्ट पे, अब ये स्टॉक 50-डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। हालांकि अपने सप्लाई जोन जो कि इसके मेजर सप्लाई जोन है वो करीब 510 के आसपास है और आज इंट्राडे बेसिस पे भी वही से स्टॉक में करेक्शन बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 510 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल को क्रॉस कर लेता है ये, तो फिर यहाँ पे तेजी और भी बढ़ते हुए दिख सकती है एंड देन 540 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो ये सजेशन रहेगा कि जिनके पास पोजीशन है वो 484 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। पहला टारगेट 510 का ही है, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 530 540 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। उठी तक ये बढ़ सकता है। ग्रीन न्यूज़ को लेकर ये व्यू, निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है करीब 50 अंकों के आसपास की, 24,450 के नीचे है। 24,400 वाला अब जो इसके मतलब यहाँ से जो इमीडिएट सपोर्ट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो जो गिरावट है हो गई है करीब 125 अंकों से भी ज़्यादा की। 53,700 के नीचे आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, तो वीकनेस आपको दिखाई देगी। मतलब अगर हम सेक्टर्स देखेंगे ना तो बैंकिंग आपको कमजोरी दिखेगा, उसमें कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। आरबीएल बैंक को लेकर एक कपिल आप राय दीजिए। आरबीएल बैंक हम देखते हैं कि 250 रुपए के आसपास ये सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर से थकता है। राजेश जी, आप ही व्यू दीजिए आरबीएल बैंक पर, आपसे पहले मैं इस पर बात कर चुका हूं। आरबीएल बैंक आपको लगता है कि अपनी रेंज से बाहर निकलेगा या फिर ऐसे ही 15-20 रुपए के रेंज में उथल पुथल होती रहेगी ये? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक का ऑलमोस्ट पिछले 5 से 6 वीक में एक रेंज में ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। एक फ्लैग फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हालांकि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है।
बट हमें लगता है जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना है, इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने अपनी एक रेंज को बरकरार रखा है। लोअर साइड पे 250 के आसपास इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और वहां से हायर साइड पे अगर देखें 270-72 के आसपास हर बार ये स्टॉक अटका है। बट हमें लगता है कि अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी थमती है और मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो काफी कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स एक बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड एरिया में अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करे। तो अगर थोड़ा भी एक रिकवरी का ट्रेड बनता है बैंकिंग फाइनेंशियल में, तो आरबीएल बैंक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल फॉर्मेशन। 250 का स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है, लेकिन वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। बट ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 272 के ऊपर अगर इसमें ब्रेकआउट बनता है तो फिर ये 290 तक की चाल भी दिखा सकता है। ठीक है, बशर्ते 272 को पार करे तो 290 तक ये शेयर जा सकता है। आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू। एक काम कीजिए, बीएसई के शेयर को लेकर आइए। बीएसई के शेयर में हम गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं और अब ये शेयर आ गया है 2100 रुपए के भी नीचे। 2097 रुपए पर आप इसको ट्रेड होते हुए देखेंगे और ये लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है। करीब करीब अगर हम लगातार बात करें तो 5 सत्र से 2500 रुपए से ये शेयर लगातार टूट रहा है और गिरते गिरते 2100 रुपए के नीचे आ गया। और इसके अगर आप हाई से देखेंगे 3030 रुपए से, तो शेयर करीब करीब 30% ये गिर चुका है और अब 2000 रुपए की तरफ ये बढ़ रहा है। अमोल जी, बीएसई प्रॉब्लम लगातार है क्योंकि रेगुलेटर्स की तरफ से स्टेटमेंट ऐसे आए कि वो कैश में वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। वीकली एक्सपायरी क्या खत्म कर दी जाएगी, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। बाजार ने उसको रीड करने की कोशिश की सीबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे के स्टेटमेंट को। आप जरा बताइए कि बीएसई को लेकर आपका व्यू क्या है, क्या और गिरेगा, सपोर्ट इसका कहां पर अब है, क्योंकि एक एक करके सारे सपोर्ट टूट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट टर्म में स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और जो वीक सेटअप है वही कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे अभी तो दिख के आ रहे। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 10% से भी ज्यादा करेक्ट आज ये वीक में स्टॉक करेक्ट हुआ है। लोअर टॉप फॉर्मेशन है और कहीं भी बड़े सपोर्ट्स के आसपास, जैसे कि 2200 का एक सपोर्ट था, वहां पे भी कोई ऐसे साइंस दिखे नहीं जहाँ पे एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ कुछ दिखा नहीं है। तो मुझे लगता है ये आई थिंक जो वीक सेटअप है वो कुछ और दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे। मोमेंटम इंडिकेटर जरूर बता रहे कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन है, बट जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं आता मुझे लगता है कि वीक सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। डाउनसाइड का अगर आपने सपोर्ट पूछा था, मुझे लगता है 2000 एक साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। 2000 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो थोड़ा सा एक आध दिन के लिए या 2 दिन के लिए प्रेशर, सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ हम बीएसई में देख सकते हैं। ठीक है, बीएसई अगर आप दिखाएंगे, अगर पिछले 5 दिन का अगर आप चार्ट दिखाएंगे ना हफ्ते भर का, तो आपको दिखेगा कि करीब करीब 15-20% ये नीचे आ गया है और अपने हाई से करीब करीब 30% नीचे आके आपको शेयर ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 2000 का एक अहम सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी बीएसई के निवेशकों के लिए। चलिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अमोल जी से, राजेश जी से उनके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड समझेंगे और कुछ और शेयरों पर व्यू लेंगे। एमएनएम क्यों टूट रहा है इसकी भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 24,420 के लेवल्स पे है, लगभग 75 पॉइंट्स का कट है। ऑफकोर्स रिलायंस जो है सबसे ज़्यादा ड्रैग कर रहा है इंडेसेस को अभी, लेकिन कुछ खास सपोर्ट बैंक से भी नहीं देखने मिल रहा है। रिलायंस देखे तो स्टॉक 2% गिरा हुआ है, डेज लो पे 1360 के नीचे आ गया है। लेकिन चलिए आज बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड अगर कुछ है तो उस पर अब नज़र डालते हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके पास कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड है? तो एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एफएमसीजी बास्केट से ब्रिटानिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा बाइंग आज बनते हुए दिखा। इवन और भी एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम तो था आज के सेशन में। ब्रिटानिया में बाय करने की सलाह बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें लगता है यहाँ पे 5950 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 5785। की कॉल रहेगा जी, एक ही बीटीएसटी रहेगा जी बिल्कुल, एक बीटीएसटी ब्रिटानिया। डायरेक्टर साहब बीटीएसटी पे जो है ठप्पा लगाए, ब्रिटानिया जो है ये स्टॉक रहने वाला है। स्टॉक देखे तो आज 2% ऊपर है, टारगेट 5950, स्टॉप लॉस 5785 का। अमोल, आपका क्या रहेगा कॉल?
मैं भी एक ही स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। एक तो टाटा स्टील एक प्रॉमिसिंग लेवल पे है, एक तो डेली और वीकली पे डबल बॉटम फॉर्मेशन के आसपास है, आज दोजी कैंडल कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट में अगर बाउंस बैक आता है तो जरूर एक मेटल में ओवरऑल एक्टिविटी पॉजिटिव साइड पे बढ़ने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 152 स्टॉप लॉस रहेगा टाटा स्टील के लिए, और 158 160 शायद पोजिशनली भी थोड़ा एक आध 2 दिन का टाइम ले सकता है, बट 160 तक के टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है टाटा स्टील पे टेक्निकल बाउंस 160 तक आ सकती है, तो इस पे भी जो है नज़र रहेगी। अमोल की जो ये पिक आ रही है, डायरेक्टर साहब इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 158 टारगेट प्राइस 160 का, स्टॉप लॉस 152 का है, तो अमोल की पिक टाटा स्टील है। लेकिन रिलायंस एजीएम 2 बजे से शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अभी तक की जो बड़ी बात है वो हम आपको सामने बता देते हैं। 2026 में जनवरी से जून के बीच में जियो टेलीकॉम का IPO आएगा। जियो टेलीकॉम का भारत के बाहर ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है, और याद रखिए जियो टेलीकॉम का कस्टमर बेस 50 करोड़ के पार आ गया है। AI यूनिट डेटा सेंटर के लिए सब्सिडरी बनाएगी रिलायंस। AI के लिए गूगल मेटा के साथ रिलायंस का होगा करार। वित्त साल 2025 में रिलायंस रिटेल कारोबार रेवेन्यू लगभग 3.3 लाख करोड़ करेंगे, और 3 साल में रिटेल रेवेन्यू में 20% का CAGR ग्रोथ संभव। रिलायंस ने पिछले 3 साल में लगभग 5.6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया गया है, और कुछ साल में रिलायंस का वर्कफोर्स 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 12,500 करोड़ डॉलर सालाना आय वाली भारत की ये पहली कंपनी है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट जो है रिलायंस के AGM के तरफ से आ रहे हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट आता है तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक खास रिसर्च है कि M&M में जो है गिरावट क्यों आया, ये अभिषेक बताएंगे हमें। शेयर लगभग 4 दिन में 6% से ज्यादा फिसल गया है, क्या वजह है इसकी? शरद, देखिए M&M की गिरावट के पीछे कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। देखिए शेयर स्ट्रांग है, और फंडामेंटल्स भी इसके काफी अच्छे हैं। बस हो ये रहा है कि थोड़ी सी ना विद इन ऑटो बास्केट थोड़ी चर्निंग हो रही है, और ऐसा देख के लग रहा है कि M&M से पैसा निकल के मारुति में जा रहा है, बस ये है। अदरवाइज हमने हाल ही में 25 अगस्त को हाईज बनते हुए देखे थे M&M में। 3430 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर यह शेयर पहुंचा, और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी निवेशक प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 4 सत्र की बात करें तो 4 सत्र में 6% के आसपास की गिरावट आ गई है। अगर आप पिछले 6 महीने के आंकड़े देखेंगे शरद, तो M&M ने ऑटो इंडेक्स को और ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। अगर आप M&M के चाल की बात करेंगे तो 6 महीने में करीब 24% के आसपास रिटर्न दिए हैं। लेकिन सेंसेक्स की बात करें 9-9.5%, और BSE ऑटो इंडेक्स देखिए 22%, तो आउट परफॉर्मेंस थी बाकी स्टॉक के मुकाबले। और अब ये मारुति ने जो अब EV पे थोड़ा सा हमने देखा है कि एक्सीलरेटर दबाया है। हंसलपुर प्लांट का PM मोदी ने उद्घाटन किया, वहां से ग्रैंड विटारा का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और ग्रैंड विटारा की बिक्री जो होगी 100 देशों में होगी। तो अभी तक जो EV के स्पेस में टाटा मोटर्स और M&M का दबदबा था। M&M ने अपने BE6 वाली जो गाड़ियां थी, जो चमचमाती लग्जरी टाइप की जो EVs थी, उनको लॉन्च किया था। अब मारुति भी स्पेस में आ गई है। और मारुति इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए मारुति ना जो यूजर एंड वाली जो गाड़ियां हैं ना, अब तक उसमें दबदबा रहा है। आप 100 कारें अगर देश में चलते हुए देख रहे हैं तो उसमें से 40 मारुति की हैं सड़कों पर। इससे आप समझ लीजिए कि मार्केट में कितना बड़ा डोमिनेंस है इस कंपनी का। तो मारुति के एंट्री के चलते थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि पैसे वहां से M&M से निकल के मारुति की तरफ जा रहे हैं, और मारुति ने भी अपना अभी रिकॉर्ड हाइज बनाया है। अगर हम पिछले 1 महीने में अगर हम 4 व्हीलर शेयरों की बातचीत अगर करें तो थोड़ी आपको ना तस्वीर ज्यादा साफ नजर आएगी कि किसकी तरफ रुझान है। क्लियरली विनर है मारुति, करीब 19% के आसपास के रिटर्न 1 महीने में है। Hyundai की बात करें तो करीब 17% के। M&M सपाट है, महीने भर में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो 4 दिन में जो भी रिटर्न थे सारे के सारे गायब हो गए हैं। और टाटा मोटर थोड़ा लगाड़ है ही, और 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। तो ये हो ये रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। हमने देखा था कि अप्रैल में जहां पर शेयर था 52 वीक लो पर, वहां से करीब 38% M&M का शेयर चला था, लगातार तेजी हुई थी। और अब ऊपरी स्तरों पर निवेशक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करने के मूड में है, और जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ऑटो में, वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नेगेटिव रीजन नहीं है। जेफरीज की अभी भी ये टॉप पिक में शामिल है M&M का शेयर। ऐड हुआ था M&M इनके लिस्ट में जेफरीज के, तो
यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें तो लॉन्ग टर्म जो है स्टेबिलिटी ज़रूर है स्टॉक में। अब कल जो है मंडे को 1 अगस्त को आपको ऑटो सेल्स भी दिखने मिलेगा। राजेश जी, आपसे एक बार रणनीति जानना चाहता हूँ, एमएनएम पे बाय द डिप हो सकता है पोजिशनली? अगर होगा तो क्या इंपॉर्टेंट टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस रखेंगे आप? जी, इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है जरूर। एक करेक्शन हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हायर साइड से आते हुए दिखा है, बट हमें लगता है कि ऑन द डाउन साइड स्टॉक अब अपने ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। 3150 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा इस डिक्लाइन में। अगर ये इस लेवल को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है कि 3150 से वापस इसमें पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। तो डिप्स में बाय किया जा सकता है ये स्टॉक को, क्योंकि इसके अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वो बुलिश ही है। बिल्कुल। क्या लेवल्स रहेंगे राजेश? 3150 के आसपास इसको बाय करें और डाउन साइड में 3100 स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हायर साइड पे अगर देखना है तो जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है अभी वो करीब 3300 के आसपास है। जैसे ही वापस ये 3300 के लेवल को निकालेगा तो वापस स्टॉक में अप ट्रेंड हमें लगता है रिज्यूम होते हुए दिखेगा। तो 3300 पे जो है नज़र ज़रूर रखे। 3150 पे जो है खरीदारी अगर थोड़ा और डिप आता है तो और अट्रैक्टिव लेवल्स पे रहेगा। अमोल, आपके पास कोई स्टॉक पिक है? ऑफकोर्स हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो या ऑटो एंसिलरी में कहीं पे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अमोल, आपके पास? पोजिशनली हुंडा है एक बेटर ऑप्शन है। एक तो रैली हुआ है, फिर कंसोलिडेट हुआ है, फिर हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो आई थिंक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मैं देखूं तो भी 2400 का एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है। जब तक वो लेवल मेंटेन है आई थिंक ये अप ट्रेंड बना रहेगा। इमीडिएट टारगेट 2600 का रहेगा, वही से एक लास्ट टाइम करेक्शन आया था, वो अगर सक्सेसफुली क्लियर करता है तो आई थिंक 2630 2650 तक स्टॉक ये मोमेंटम पॉजिटिव अपना रख सकता है। ठीक है, Hyundai को लेकर ये व्यू थोड़ी सी तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन चलिए अब बाजार बंद होने में करीब करीब 6 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज की स्थिति ये है कि हमने शुरुआत की, ऐसा लगा कि बाजार थोड़ा संभलेगा। गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत जो थे थोड़े से ही पॉजिटिव थे, लेकिन हमने कहा था सुबह कि नहीं आप बिल्कुल भी इस गिफ्ट निफ्टी पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि डीकपल्ड है। गिफ्ट निफ्टी की चाल कुछ और है, बाजार में सेंटिमेंट कुछ और प्ले हो रहे हैं और ये बिल्कुल देखिए सिर्फ टैरिफ का मसला नहीं है। टैरिफ के साथ साथ में कई चीजें आ जाती हैं। आप टैरिफ को सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि टैरिफ है उसके चलते बाजार गिर रहा है। देखिए अगर आपका एक्सपोर्ट अगर मान लीजिए कम हो रहा है तो होगा ये कि डॉलर कम आएंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ता है, डॉलर कम आता है अगर देश में, तो फिर रुपए पर प्रेशर डालेगा। आज हमने रुपया देखे कि ऑल टाइम लो पर चला गया, तो रुपए की वीकनेस है, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है, एफआईज भारतीय बाजार में आ नहीं रहे हैं, जीएसटी के चलते अब मतलब लोग थोड़े से ना रुक गए हैं कि अच्छा शॉपिंग वगैरह बाद में किया जाएगा, एक बार क्लैरिटी आ जाए। तो 3-4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उस पर नजरें हैं और ये वीकेंड का दिन है शुक्रवार। अब लोग अनिश्चितता लेकर जाना नहीं चाहते हैं और ये मुझे लगता है सही रणनीति भी है। आज अगर आप देखेंगे तो ये रिलायंस ने आखिरी घंटे में ना माहौल काफी ज्यादा खराब कर दिया। 2.5% गिर के ये शेयर कारोबार कर रहा है और किसके चलते? सिर्फ एक स्टेटमेंट के चलते कि हम रिलायंस जियो को ग्लोबल करेंगे। तो मतलब निवेश की रकम क्या होगी, पैसे कहां से आएंगे, फिर आप कहां पर लगाएंगे, कब रियलाइज होंगे, आपको प्रॉफिट ब्रेक इवन कब होगा, ये सारी चिंता एक निवेशक के मन में होती है। जब भी कोई भी कंपनी कहती है ना कि हम कोई एक्विजिशन करेंगे तो आपने देखा होगा कि नहीं फिर वो गिरावट का शिकार होती है। अरविंदो फार्मा को लेकर खबर आई थी, उसके बाद हमने देखा था जेंटिवा की एक्विजिशन वाली कैसे वो शेयर गिरा था। तो कुछ उसी तरह का माहौल हम रिलायंस में देख रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट अभी निफ्टी में है, पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है 72 पॉइंट का है, नेगेटिव जो कंट्रीब्यूशन है 162 पॉइंट का है और 162 में से अकेले 60 पॉइंट जो है वो रिलायंस के चलते गिर रहा है बाजार। इन्फोसिस के चलते 30 पॉइंट, एमएनएम का 20 पॉइंट और एचडीएफसी बैंक के करीब 10 पॉइंट। तो ये कुछ मेजर शेयर हैं जो बाजार को गिराने का काम कर रहे हैं। एक इन्फोसिस पर व्यू राजेश जी आपसे चाहिए। बीच में हमने देखा कि ऐसा लगा कि आईटी शेयर संभल गए हैं और चलेंगे, हालांकि इन्वेस्टमेंट को लेकर कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था और मैं तो कन्विंस था ही नहीं कि ये आईटी की तेजी टिक पाएगी। आप जरा बताइए कि ये इन्फोसिस आज जो कमजोर हो रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए और किसी के पास अगर है इसमें लॉन्ग की पोजीशन है तो आप सलाह क्या देंगे?
नहीं, अभी वीकनेस है आईटी स्टॉक्स में, और इन्फोसिस में भी अगर हमने देखा कि एक पुलबैक का अटेम्प्ट जरूर लिया था स्टॉक ने इन लाइन विद अदर आईटी स्टॉक्स, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया वो मूव। हमें लगता है अभी भी आईटी सेक्टर को लेकर अनसर्टनिटी बनी हुई है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई बड़ी तेजी अभी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती। अभी काफी समय लगेगा ये सेक्टर को वापस से रिकवर होने में, जिस तरीके के स्ट्रक्चर डैमेज यहाँ पे होते हुए दिखे। तो इन्फोसिस में भी हमें लगता है वापस ये करेक्शन में बढ़ते हुए दिख रहा है, एंड यहाँ पे 1450 के लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर वापस से इसमें डाउन साइड में 1400 की तरफ भी डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ठीक है, इन्फोसिस को लेकर ये व्यू, लगे हाथ ही काम करते हैं। एक और शेयर लेकर आइए जो अपने निचले स्तर पर है। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर भी सरकार ने कह दिया है कि नहीं, विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है और अगले साल में विनिवेश शुरुआत में इसका कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा था कि 100 रुपए के आसपास तक शेयर गया और वहां से कंटिन्यूअसली इसमें सेलिंग प्रेशर है। 85 रुपीज के भाव हैं। अमोल, एक फटाफट आप जरा व्यू देंगे आईडीबीआई बैंक पर, कहां तक आप इस गिरावट को रुकते हुए देख रहे हैं? ये एक कंफ्यूजिंग थोड़ा सा फॉर्मेशन है। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 84 का लेवल आ रहा है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है ये करेक्शन का जो सेटअप है वो और बढ़ेगा। बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, बट मैं बाउंस बैक के लिए वेट करूंगा क्योंकि ये वीक में काफी शार्प करेक्शन आया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वेट एंड वॉच का जो है अप्रोच ज़रूर देखने मिलेगा। लेकिन देखिए, ये एक टाइप से मंथली क्लोजिंग कह सकते हैं, और ये दूसरी बार होगा कि आपको जो है 25,000 लेवल्स के नीचे जो है निफ्टी बंद आते हुए देखे मिलेगा। ऑफ कोर्स M&M पे जो है भारी गिरावट देखने मिली है, स्टॉक 3% डाउन है। आईटी स्पेस में भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं आया है। इन्फोसिस में गिरावट लगभग 2% की आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी एंटरप्राइजेज भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन याद रखिए, 2 बजे के बाद जो गिरावट आ रही है वो रिलायंस में देखने मिल रही है। और जिस तरह जो होल्डिंग कंपनी का भी एंगल आता है रिलायंस में, जिसके कारण जो है जियो की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुई, उसके कारण भी जो है इन्वेस्टर्स को जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ रही है। 1355 के भाव पे रिलायंस स्टॉक 2% गिरा है, तो उसके कारण गिरावट आ रही है। अगले साइड अगर बात करें तो FMCG स्पेस में कई सेगमेंट्स में बाइंग आई है। ITC 2% ऊपर है। टाटा स्टील, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। शुरुआती स्तर पे बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 था, लेकिन अब जो है वो 2:3 जो है बेयर्स के तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो नेट जो है बाजार एक जो है 2 दिन की सेलिंग थी। आज शुरुआती स्तर पे देखें तो थोड़ी सी मोमेंटम आई थी रिकवरी की, लेकिन क्लोजिंग 1.5 आवर्स जो लास्ट 90 मिनट्स है वहाँ पे जो है गिरावट बढ़ती रही है। और अब देखिए निफ्टी बैंक भी जो है उसमें भी गिरावट आई है, उतना बड़ा नहीं लेकिन फिर भी एक गिरावट देखने मिला है, लगभग 125 से लेकर 130 पॉइंट का। निफ्टी भी देखें तो 24,430 या 440 लेवल्स के नीचे बंद होगी। सेंसेक्स में भी गिरावट आया है, लगभग 250 पॉइंट्स का। आज शाम को ऑफकोर्स GDP डेटा भी आने वाले हैं, और नेक्स्ट मंडे जो है GST और ऑटो के नंबर्स भी आएंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बट नेट कहेंगे कि लगातार तीसरे दिन जो है भारी गिरावट बाज़ार में देखने मिली है, और यही आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन या टैरिफ को लेके आए तो बाज़ार को थोड़ा सा स्थिरता ज़रूर मिलेगा। और 3 और 4 तारीख को जो है अहम GST मीट भी हैं, जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए, राजेश जी, अमोल जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत वॉलेटाइल सेशन में भी आपने कमाई के मौके जो है हमें दिए और हमारे दर्शकों को पूरा एनालिसिस दिया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए, मुझे और अभिषेक दोनों को आज्ञा दें, हमारा क्लोजिंग कॉल अभी समाप्त होता है, और इसके बाद जो है अगले हफ्ते की तैयारी की एक अहम शो आने वाली है, जहाँ पे जो है प्रशांत हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे अगले हफ्ते के लिए।